welcome back to my channel. In the previous video, we discussed about the relevancy of facts from section 1 to section 12. If you haven't watched my previous videos, then please watch my previous videos because it will help you to understand the relevancy of facts and also help you to understand my today's video. So today, I'm going to tell you about the relevancy of facts from section 13 onwards. Section 13. Facts relevant when right or custom is an issue. When right or custom is an issue, following two facts are relevant. First, which show origin or creation of custom or right and its subsequent history. Subsequent history includes claimed, modified, recognized, asserted, denied, or inconsistent with its existence. Second, which show practical instances in which it was followed. Let's deal with point number 1. First of all, सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 राइट्स और कस्टम्स के बारे में बात करता है, यानी वो हर फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है अगर वो एक पर्टिकुलर राइट और कस्टम के क्रिएशन के बारे में बताता है. सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ना सिर्फ क्रिएशन के बारे में बट ऑल्सो उसकी पहले की हिस्ट्री के बारे में बताता है. लाइक वो कस्टम्स या राइट कैसे ओरिजिन हुआ उनका, कैसे वो क्रिएट हुए, कैसे क्लेम हुए, सोसाइटी में कैसे रिकॉग्नाइज हुए, अगर कुछ उनमें मॉडिफिकेशन आई तो कैसे आई, या वो फैक्ट्स जो उन कस्टम से इनकंसिस्टेंट है. यानी कस्टम्स और राइट के बारे में जो फैक्ट बताता है, that fact is a relevant fact according to section 13. Also, those facts which show practical instances in which those rights or custom was followed are also the relevant fact according to section 13. This section talks about corporeal, incorporeal और tangible और intangible rights. ये कौन सी rights हैं? Corporeal, incorporeal, tangible, intangible. Corporeal or tangible rights are those rights which exist in some touchable property, यानी हम जिसको टच कर सकते हैं उस पर जो वेस्ट होती है वो होती है corporeal और tangible rights, right? Like rights in a property. Similarly, incorporeal or intangible rights होती हैं just like copyright, which we cannot touch. आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वैलिड कस्टम क्या होता है, बिकॉज दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट कस्टम. और अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा लिखना पड़े अपने एग्जाम में तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कस्टम में वैलिड कस्टम क्या होता है. एक्चुअली वैलिड कस्टम के कुछ इसेंशियल्स हैं, लाइक फर्स्ट एंटिक्विटी, बहुत पुराना होना चाहिए. मॉरल, नॉट अपोज टू मोरालिटी, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पीसेबल होना चाहिए, continuous होना चाहिए. So these are some of the essentials of a valid custom. Let me explain you this section with an example. If a person is accused of fishing in a pond, like A एक pond में fishing कर रहा था और उस पर ये allegation लगाया कि उसने वहां से चोरी करी है fishing करते टाइम मछलियों की, यानी वो fishing करना उस पर चोरी का allegation लगा दिया. Now अगर A ये prove करता है कि फिशिंग उस पॉन्ड पे करना उसकी कस्टमरी राइट है, देन दिस फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 13, बिकॉज यहाँ पर कस्टमरी राइट को प्रूव किया जा रहा है. अब कस्टम्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं ये हम आगे जानेंगे जब हम करेंगे सेक्शन 32, बिकॉज सेक्शन 32 क्लॉज 4 एंड सेक्शन 32 क्लॉज 7 बताता है कि कस्टम्स को कैसे प्रूव किया जाता है. एंड ऑल्सो सेक्शन 48 टॉक्स अबाउट सेम. Next move on to section 14. Section 14 क्या कहता है? Facts showing existence of state of mind or of body or bodily feelings. यानी according to section 14, following facts are relevant if they show first state of mind. State of mind में क्या आता है? Intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will, good will. And second point, state of body or bodily feelings. According to this section, वो हर फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी एक्यूज्ड के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताए या विक्टिम के बॉडी या बॉडीली फीलिंग्स के बारे में. यानी एवरी फैक्ट इज अ रेलेवेंट फैक्ट इफ इट शोज state of mind of a person or
of body or bodily feelings of the person, and is given of every such relevant fact. First point is state of mind. Those facts which show the state of mind of a person. State of mind includes whether that person has intention, यानी वो हर fact जो ये show करे कि that particular person has an intention of doing so and so act. Then knowledge, if he is having knowledge of doing such act. Then good faith, ill will, malified intention, rashness, negligence, ये सब ingredients हैं state of mind के, जो बताते हैं कि उस इंसान का state of mind क्या था particular act के time पे. Second, state of body और bodily feelings, यानी ऐसी क्या bodily feelings थी, वो facts जो ये bodily feelings बताएं, those are also relevant facts. Let me explain you with an example. In a case against A for shooting B from pistol, A ने B को पिस्टल से शूट किया. इस केस में अगर ऐसा एविडेंस मिलता है कि A ने पहले भी B को पिस्टल से शूट करने की कोशिश की है, तो दिस फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट फैक्ट इन सेक्शन 14 बिकॉज ये फैक्ट ए की इंटेंशन को शो करता है, यानी स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि ए ने पहले भी बी को शूट करने की कोशिश करी है. दिस फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट फैक्ट बिकॉज इट शोज स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए. सेकंड एग्जांपल, ए इज लायबल फॉर पासिंग काउंटरफीट कॉइन्स, जाली कॉइन्स. Then the fact that he had knowledge of the fact that such coins were counterfeit coins, यानी ए में ये एलिगेशंस लगा कि उसने काउंटरफीट कॉइन्स को आगे किसी और को दिया है, यानी पास किया है, सर्कुलेट किया है. अब अगर ये फैक्ट प्रूव होता है कि ए को ये नॉलेज था कि जो कॉइन्स वो आगे पास कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, वो काउंटरफीट कॉइन्स हैं, देन दिस फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट फैक्ट because it shows the state of mind of A. कौन सा state of mind? उसका knowledge बता रहा है, so this becomes relevant fact. Second है state of body or bodily feelings. So statements made in respect of a particular person's body or bodily feeling are relevant and can be given in evidence. For example, the question is whether A died of poisoning. The fact that soon before his death, A stated the symptoms of his death, यानी मरने से पहले उसने symptoms बताए थे कि उसको कैसा फील हो रहा है, उसकी बॉडी में कैसा फील हो रहा है. तो ये सारे symptoms relevant fact हैं because these facts are showing his state of body or his bodily feelings. Section 14 gives two explanations. First explanation says state of mind must exist in reference to particular matter in question and not generally. यानी जो हम state of mind की बात कर रहे हैं section 14 में, वो state of mind एक particular matter को लेकर होना चाहिए. General state of mind is not at all relevant under section 14. That means जो state of mind है वो particular matter के लिए ही होना चाहिए. जो incident, जो act question में है, उसके लिए ही वो state of mind होना चाहिए. Second explanation क्या कहती है? When previous commission is relevant, then previous conviction is also relevant. Generally क्या होता है? इस explanation को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है. There is a general principle or general rule which says that previous commissions and previous convictions are not relevant. अगर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उसमें जो एक्यूज्ड ने अगर पहले भी कभी कोई क्राइम किया है या उसमें उसको कन्विक्शन मिली है, एज अ जनरल रूल दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज नॉट रेलेवेंट, बिकॉज हर केस अपने ही फैक्ट्स में डील होना चाहिए और अपने ही फैक्ट्स में डील होता है. बट this explanation 2 or say section 14 is an exception to this general rule, जो कहता है कि अगर previous commission relevant होती है तो उस accused की previous conviction भी relevant fact बन जाता है. अब किन cases में previous commission और previous conviction relevant है? If there's a question
regarding the state of mind of that person or state of body or bodily feelings. अगर सेक्शन 14 में स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में बात की जाए, अगर ये दोनों चीजों में से कोई क्वेश्चन में है, देन उस केस में एक्यूज की प्रीवियस कमीशन और प्रीवियस कन्विक्शन दोनों रेलेवेंट हो जाती हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीवियस कमीशन, प्रीवियस कन्विक्शन आर नॉट रेलेवेंट. Before moving to section 15, एक और जनरल रूल जानना बहुत जरूरी है, एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स का. एंड द जनरल रूल इज एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स इज नॉट रेलेवेंट. जैसे हमने अभी बात की, प्रीवियस कमीशन, प्रीवियस कन्विक्शन जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली रेलेवेंट नहीं है. सिमिलरली जो सिमिलर फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट नहीं है. सिमिलर फैक्ट्स क्या हैं, ये एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक डॉक्टर पर एलिगेशंस लगा कि उसने नेग्लिजेंटली एक ऑपरेशन किया. अब द फैक्ट इज कि उसने पहले भी कई ओकेजन्स में कुछ ऑपरेशंस नेग्लिजेंटली परफॉर्म किए हैं. दिस इज अ सिमिलर फैक्ट एंड दिस इज नॉट रेलेवेंट. प्रेजेंट केस में ये प्रीवियस उसके नेग्लिजेंट ऑपरेशंस रेलेवेंट नहीं है एज पर जनरल रूल. सिमिलर फैक्ट्स को रेलेवेंट नहीं माना जाता बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस. फर्स्ट, हर केस अपने ही फैक्ट्स में डिसाइड होना चाहिए. सेकेंड, कि अगर प्रीवियस फैक्ट्स या सिमिलर फैक्ट्स को प्रेजेंट केस में लाया जाएगा तो वो कोर्ट की अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं मेन फैक्ट से. थर्ड पॉइंट, अगर एक्यूज्ड का प्रीवियस कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इससे जज का माइंड, कोर्ट का माइंड इन्फ्लुएंस होने का चांसेस हैं, यानी उनका माइंड इन्फ्लुएंस हो सकता है. तो इन 3 चीजों की वजह से सिमिलर फैक्ट्स को रेलेवेंट नहीं माना गया है. बट अगेन इनके 3 एक्सेप्शंस हैं. फर्स्ट, सेक्शन 15 जो अभी हम करेंगे. सेक्शन 14 एक सेकेंड एक्सेप्शन है इस जनरल रूल का जो अभी हमने किया, टू प्रूव मेंटल एलिमेंट यानी स्टेट ऑफ माइंड. अगर क्वेश्चन स्टेट ऑफ माइंड का आता है कि एक्यूज्ड की इंटेंशन क्या थी, नॉलेज था या नहीं, गुडविल थी, इलविल थी, रैशनेस था या नेग्लिजेंट, इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए प्रीवियस केसेस यानी प्रीवियस फैक्ट्स और सिमिलर फैक्ट्स रेलेवेंट बन जाते हैं, जो सेक्शन 14 में हमने समझा. और सेक्शन 9 इज अनदर एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल जो एक बताता है टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, जो हमने पहले की वीडियोस में किया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप उनको देखिए, जिनसे आपको समझ आएगा कि सेक्शन 9 एक्सेप्शन सिमिलर फैक्ट्स का कैसे है. लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 15 नाउ. Section 15 says facts bearing on questions whether act was accidental or intentional. When there is a question as to whether a particular act was first accidental, second intentional, third done with a particular knowledge, then such fact or such act form part of series of similar occurrences is relevant. Now here is a catch. First of all, ये section क्या कहता है कि वो हर फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है जो बताता है कि पर्टिकुलर एक्ट इन क्वेश्चन क्या वो एक्सीडेंटल था या वो इंटेंशनल था या वो एक पर्टिकुलर नॉलेज को रखकर किया गया है. और अगर वो फैक्ट पहले सिमिलर अकरेंसेस में हुआ है तो वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है. एक बार दोबारा से समझते हैं. When the question is whether an act is accidental, intentional, or done with a particular knowledge, then such act formed part of series of similar occurrences is relevant. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ए पर ये एलिगेशन है कि उसने अपना घर खुद ही जलाया इंश्योरेंस का मनी क्लेम करने के लिए, यानी उसका घर इंश्योर्ड था और उसने वो इंश्योरेंस का मनी क्लेम करने के लिए अपना घर खुद ही जलाया. अब अगर ऐसा प्रूव होता है कि पहले भी ए के कुछ घर आग में जले और उनके जलने के बाद
ए को इंश्योरेंस मनी मिला, यानी पहले भी ऐसे ओकेजन्स हो रखे हैं जहां पर ए के घर जले थे और ए ने इंश्योरेंस मनी क्लेम किया था। जबकि ये फैक्ट प्रेजेंट फैक्ट से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल ये फैक्ट इसकी पहले का जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट यहाँ हो जाता है, बिकॉज जो प्रेजेंट फैक्ट है यानी अपने घर को जलाना, ये पहले के फैक्ट से कनेक्टेड है, as these two acts formed part of similar occurrences, यानी सिमिलर अकरेंस पहले भी हुआ है, सिमिलर फैक्ट पहले भी हो चुका है, दैट्स व्हाई उसका प्रीवियस एक्ट और प्रीवियस फैक्ट इज रेलेवेंट हियर। अब इसमें एक्सेप्शन अगेन इसके एक्सेप्शन जैसे हमने पढ़े थे अभी, सेक्शन 15 एक एक्सेप्शन है, देन सेक्शन 14 टू प्रूव मेंटल एलिमेंट एंड सेक्शन 9 टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज्ड। ये इसके एक्सेप्शंस हैं कि सिमिलर एक्ट्स और सिमिलर अकरेंसेस आर नॉट रेलेवेंट इन द प्रेजेंट केस। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 16, existence of course of business when relevant. When the question is whether a particular act was done, then the fact that it was done in a particular course of business is a relevant fact. This is a rebuttable presumption. Section 16 क्या कहता है? If there is a question whether a particular act was done or not, simple question, whether a particular act was done or not, then every fact that shows that such act was done in a course of business is a relevant fact. एक पर्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट बन जाते हैं जो फैक्ट्स ये बताते हैं कि वो एक्ट एक अपने कोर्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, यूजुअल डेली रूटीन के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर कोर्ट के माइंड में एक प्रिजम्पशन आ जाती है कि अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हो रहा है, दैट मीन्स वो एक्ट हो गया। बट देन अगेन इट इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन, और दूसरी पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक्ट नहीं हुआ, वो इस फैक्ट को रिबट कर सकती है। एग्जाम्पल से समझिए, whether a particular letter was delivered to A or not. This is a question कि क्या वो लेटर A को डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। Then the fact that it was posted in due course of business, just like other letters, it was transferred from one post office to another post office, just like other letters, and then it was delivered to A and it did not return. तो ये जो पूरी चेन बन रही है कि वो ओरिजिनल कोर्स ऑफ बिजनेस में पोस्ट हुआ, फिर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस गया बाकी सब लेटर्स के साथ, जो डेली पोस्ट ऑफिस का रूटीन है, उसके बाद वो ए को डिलीवर हुआ और वो वापस नहीं आया। तो ये सब जो फैक्ट्स हैं, ये जो पूरी चेन है, ये कोर्ट इन फैक्ट से ये प्रिज्यूम कर लेता है कि इसका मतलब वो लेटर पोस्ट हो गया, वो लेटर एक को डिलीवर हो गया, क्योंकि वो वापस नहीं आया। बट देन as I said, it's a rebuttable presumption. Other party can rebut this fact and can prove कि वो letter A को deliver नहीं हुआ. So that's all for today, guys. I hope you have liked my video. Keep watching my videos. Please subscribe the channel and hit the like button so that I can keep on making such kind of videos to make Evidence Act simple for you. That's it for today. Thank you.